So we'll start with the next chapter, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. And it's a very simple chapter. बेसिक पता होना चाहिए. The basic idea is अभी पिछले चैप्टर में 10th नंबर चैप्टर में 11th we are not revising because it's very simple. So in chapter number 10th we have seen magnetic fields due to electric current. मतलब you already know कि जब भी हमारे पास एक current carrying wire होगा तो it will generate magnetic field in its surrounding. यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है because we know current can produce magnetic field. तो अभी क्वेश्चन उल्टा है, can magnetic field also produce current? So to study this, Faraday performed some experiments and he noticed whenever there is relative motion between coil and a magnet, there is induced current in the circuit. So basically the idea is आपके पास एक closed loop है. इस क्लोज लूप के साथ आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ. हमने इस एक कॉइल लिया, कॉइल को सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, नथिंग एल्स. देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड वी हैव अ मैग्नेट. हमारे पास एक मैग्नेट है. सो इट वाज सीन दैट व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड current loop है ना, ये closed loop है ये, right? So whenever there is relative motion between closed loop and magnet, there is current induced in the loop and the coil of the galvanometer deflects. तो अब from this experiment he मतलब Faraday drew some conclusions. तो पहले आइडिया समझ लो. करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पता है. क्वेश्चन ये है मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं. तो टू स्टडी दैट, अब जब हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, तो हम लोगों ने सर्किट में एक कॉइल लिया है, एक गैल्वेनोमीटर लिया है. हमने अदर देन दैट हमने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लिया, हमने कोई सेल कनेक्ट नहीं किया. तो व्हेन दिस कॉइल और मैग्नेट वाज मूव्ड, देयर वाज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन सीन इन द गैल्वेनोमीटर. मतलब व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द लूप, you see some amount of current being generated. So अब from this small experiment, Faraday made a lot of conclusions. Number one, when the magnet was moved towards a stationary coil, stationary loop, then galvanometer shows deflection. मैं लिखूंगा नहीं, ये थ्योरी है तो बताना चाहिए. Number 2, when the same magnet was moved away from stationary coil, again a current is induced and you get some deflection in the galvanometer, but now in the opposite direction. Number 3, now instead of moving magnet, if the coil is moved towards or away, then you get again deflection in opposite directions. तो पहले केस में हमने मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स, फिर मैग्नेट को मूव किया अवे, फिर उसके बाद हमने कॉइल को मूव किया अवे एंड कॉइल को मूव किया टुवर्ड्स. तो इन ईच ऑफ दिस केस वी सी सम अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट. देन अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड. किस पे डिपेंड करेगा? द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट depends on the velocity, relative velocity between magnet and coil. मतलब जितना फास्ट वेलोसिटी होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा. ओके, so you need to know this. So the magnitude of induced current depends on the relative velocity of magnet and coil, and also it depends on the number of turns in the coil. Then नंबर 5, तो पहले 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए. पहले 4 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू जस्ट मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल. मैग्नेट टुवर्ड्स, देन मैग्नेट अवे, देन कॉइल टुवर्ड्स अवे, देन व्हाट? अभी तो पता है. अमाउंट ऑफ करंट, द मैग्नेट ऑफ करंट इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन
yes, then one more point is there. आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, right? So when the polarity of the magnet changes, then you again get induced current, but now in opposite direction. तो ये पता होना चाहिए. This is what you should know. Okay, right. Then अब instead of taking one magnet and one coil, if you have two coils, सिर्फ इतना है कि आपके पास जो दो coils है उसमें से एक coil के साथ एक key है, then you had something else here, rheostat and battery. So you had a cell या फिर battery and a rheostat. Okay, something like that. ऐसा आपके पास एक कॉइल है, दूसरा जो कॉइल है उसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. इस कॉइल को बोलते हो प्राइमरी, इसको बोलते हो सेकेंडरी, राइट? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन मैग्नेट एंड वन कॉइल, व्हेन यू टेक टू कॉइल्स and one of these two coils is connected in series with a key and battery, source of EMF, and a rheostat. This coil is called as primary coil, और जो दूसरा coil था which is connected only with galvanometer is called as secondary coil. Good. Then it is seen that अब इसमें तीन cases बनते हैं. Number one, whenever we make or break the circuit, मतलब की को हमने insert किया और then की को remove कर दिया, then again we will insert key and then we will remove key. So whenever you make or break circuit, जब आप circuit को make करोगे, मतलब key को insert करोगे, current flows, and when current flows we see a small amount of current was flowing in the primary but current was induced in the secondary. जब आपने इसको break कर दिया, break करना मतलब key को निकाल देना, then again it is noticed कि अब यहाँ पे सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हुआ है बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन. देन नंबर टू, whenever there is relative motion between these two coils, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी में रिलेटिव मोशन करेंगे तो अगेन you will see that there is current induced in the secondary. अगर आप सेकेंडरी कॉइल को टुवर्ड्स ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी इन द वन डायरेक्शन, और इसको ले जाओगे तो इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. Number three, whenever current in the primary changes, then again you get current induced in the secondary, right? तो ये 6-7-8 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेगी. बहुत सिंपल है, एक्चुअली सिंपल. यू ऑलवेज हैव टू कनेक्ट. प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम के टाइम लिखने का, यू बेसिकली फॉलो द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, व्हिच इज समथिंग वेरी रॉन्ग. क्या है, हाउ विल यू राइट इफ दे आस्क यू? एक कॉइल लेना है, कंसीडर a coil in the form of closed loop connected in series with a galvanometer. Consider a magnet placed near to the coil. Then, following are the observations from Faraday's experiment. When the magnet is moved towards the coil, then a small amount of current flows through the galvanometer and we get deflection. When the same magnet is moved away from the coil, then there is again current induced in the loop but now in opposite direction. Now instead of moving magnet, if we move coil, then we see that we again have induced current. अब depend करेगा towards है या away है. तो towards and away के लिए deflection in the ganometer will be in the opposite direction. Then what? Then if the polarity of the magnet is changed, then current is again induced, but in this case the current induced is in the opposite direction. Then it is seen that what is seen, the magnitude of the induced current in the coil is directly proportional to relative speed of motion between magnet and the coil. It is also proportional to number of turns in the coil. Now instead of taking one coil and one magnet, if we take two coils, out of which one coil is connected with a key, source of EMF, and rheostat, which is called as primary coil, and the other coil which is connected only with galvanometer is called as secondary coil. We see that 3 points आएंगे. Whenever we make or break the circuit of the primary coil, then a small current
is induced in the secondary coil. Whenever there is relative motion between the two coils, then again you have a small current induced in the secondary coil. Then if the current in the primary changes, then again a small current is induced in the secondary coil. इतना पता होना चाहिए. अब इसके बाद we have to go ahead and talk about Faraday's laws. There are two Faraday's laws, क्योंकि Faraday ने सारा experiments की, इसके जो भी observations थे, he put forward all these observations in the form of two laws. Faraday's laws. उसमें जो पहला law था Faraday's first law. It is a qualitative law. Qualitative मतलब it just tells you what is happening, and quantitative is it tells you in how much amount it is happening. तो पहला law अगर आपको याद होगा, याद है क्या? Faraday's first law क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे? Why was current induced? Because every magnet has a magnetic field. It generates magnetic field lines which goes from north to south. And whenever you move magnet with respect to the coil, what is happening is flux changes, right? तो जब भी आपने magnet को move किया, मतलब flux linked with the coil changes, and hence an EMF is induced. तो ये हो गया Faraday's का first law. Whenever flux linked with the coil changes, and EMF या फिर current and EMF आप बोल सकते हो, a current is induced in the coil. Is induced in the coil. अब इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, हम करंट की बात कर रहे थे, EMF कहां से आ गया? बहुत लॉजिकल बात है. जब तक आप एक सर्किट में EMF का सोर्स मतलब सेल या बैटरी नहीं लगाते, तब तक करंट मिलता है क्या? नहीं मिलता. तो करंट है मतलब कुछ कोई EMF होगा. तो यहाँ पे भी हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं कि करंट मिल रहा है, मतलब करंट कौन सा है? इंड्यूस्ड है. तो हम बोलेंगे करंट इंड्यूस इसके अलावा क्योंकि EMF इंड्यूस हुआ होगा. So instead of talking about induced current, you always talk about induced EMF. So Faraday's first law tells you that whenever flux linked with a coil changes, then an EMF is induced in the coil. Faraday's second law, ये qualitative है क्योंकि ये बताता है क्या हुआ. First law में बताया क्या हुआ. Second law बताता है कि कितने अमाउंट में हुआ. Faraday's second law. तो do you remember this? The induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. So E is proportional to d phi by dt. ऐसा आता है. The amount of the magnitude of induced EMF in the coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. मतलब हर एक सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ linked with the coil. तो यहाँ से आप लिखते हो E equal to K d phi by dt, where K is some constant of proportionality. और अगर आप ऐसा यूनिट में हो तो ऐसा यूनिट में K की वैल्यू होती है 1. तो you have this as Faraday's second law. उसके बाद then we had seen which topic? Lenz's law of electromagnetic induction. Lenz's law of electromagnetic induction, EMI. And this is again very simple. तो अब ऐसा है, Lenz's law Faraday's second law को modify करता है. Basically it just tells you that E is equal to minus d phi by dt. तो it just tells you that, ये आपको इतना ही बताता है that the EMF induced in a coil is such that it opposes the change producing it. जिसने उसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करता है. एग्जाम्पल. तो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट देखने ही वाले हैं जिसको अब नाम दिया था मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, Faraday's coil and magnet experiment, ऐसा कुछ बोला था हमने उसको. तो होगा क्या? See यहाँ पे, look here, what happens is you were moving the magnet towards this coil
आपके पास एक मैग्नेट है, यू आर मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, और करंट ऐसा इंड्यूस हुआ कि वो आपको पता है कि यहां पे बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज व्हेनेवर यू हैव करंट व्हाट हैपेंस, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए, हमारा लास्ट लेक्चर में ही ये सब देखा है हमने, व्हेनेवर यू हैव करंट it produces magnetic field. So if this magnet was moving towards the coil, flux linked with the coil was changing and hence current was induced. The current induced is such that इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि ये जो फेस है it will become north pole and this will become south pole. इसका मतलब जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट को अपोज कर रहा है. So according to Lenz's law, very simple, the direction of induced current or EMF is such that it opposes the cause producing it, or cause क्या था, change of flux, so it opposes the change of flux which is producing it. तो ये हो गया Lenz law. अब Lenz law को चेक करने के लिए Faraday performed another experiment which is called as Faraday's coil and magnet experiment. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये. तो Faraday took a magnet, he took a coil, north pole, south pole, and then जब, and of course you know कि इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है, तो लेट मी शो सम फ्लक्स लिंक्ड विद दिस magnet. So this is the magnetic field lines of the bar magnet. समझ लेना आप, right? So whenever you move the magnet towards the coil, तो flux linked with the coil will change, और जब flux linked with the coil चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, एंड इन दिस केस करंट इंड्यूस इज सच दैट कौन सा पोल कॉइल के पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल मैग्नेट वाज मूविंग टुवर्ड्स, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इट शुड बी सच दैट कि ये मैग्नेट को पास में नहीं आने देगा. और आपको पता है कि जब भी आपके पास एक करंट कैरिंग लूप होता है तो करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल. और आपको 11th में ही था ये कि whenever you have clockwise current it acts as south pole, and when you have anti-clockwise current it acts as north pole. तो ये नॉर्थ पोल था मैग्नेट का जो कॉइल के पास में जा रहा था, मतलब कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो गया विच इज क्लॉकवाइज, राइट. इसका मतलब ये फेज जो है इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक नॉर्थ को वो पास में आने देगा नहीं, और वही करंट आप दूसरे साइड से देखोगे तो इट विल अपीयर एज anti-clockwise. So the face of the coil which is facing the magnet, which is towards the magnet, will behave as south pole, and hence, है ना, साउथ पोल होगा ना, ये साउथ पोल होगा ना, साउथ पोल होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. गुड. तो क्या होना चाहिए, नॉर्थ. नॉर्थ मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, दिस. ओके, तो अब लिखोगे कैसे एग्जाम में, सिंपल. अकॉर्डिंग टू फैराडेज कॉइल एंड मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, क्या किया हमने, फैराडे टुक अ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल, जस्ट अ कॉइल, उसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया. नाउ व्हेन द नॉर्थ पोल of the magnet is moved towards stationary coil, then because of change of flux linked with the coil, a current is induced in the coil such that this current is in anti-clockwise direction. Hence the face of the coil pointing towards the magnet acts as north pole,
and hence there will be repulsion between magnet and the coil, and hence the induced current is such that it will oppose the motion of the magnet towards it. Right? अब उल्टा भी सोचो, उल्टा उल्टा करोगे तो क्या होगा? If you reverse this situation, everything will be reversed. Right? तो in this case, अगर आपने magnet को away move किया, so now the flux linked with the coil is decreasing. So if the magnet is moved away from the coil, flux linked with the coil decreases, and hence because of change of flux, क्या हुआ? A current is induced. In this case, the current is induced in clockwise direction. Hence, the face of the coil, which is towards the magnet, behaves as south pole, and it will attract the magnet, and it will not allow the magnet to go away. Right? तो हो गया, ये इतना ही है, simple. Then you have next topic is flux of magnetic field. Flux of magnetic field. तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बेसिकली आपको पता है, वैसे यू शुड नो कि अगर आपके पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी बार, देन यू टेक अ एरिया, आपने एक एरिया ले लिया. नॉर्मली अगर आपको याद होगा, फ्लक्स हमने डिफाइन कैसे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया. हमारे पास ये एक एरिया एलिमेंट है ds. एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. दिस परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट. बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस एरिया ds. अब नॉर्मली तो पास हो नहीं रहा है, लेकिन देयर इज सम एंगल थीटा है. तो हम क्या करेंगे? हम कंपोनेंट देखेंगे. सो वी विल फाइंड आउट द कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू द एरिया. और कौन सा कंपोनेंट है ये? b cos थीटा. देयरफॉर फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds is b phi, which is b cos theta ds. तो d phi इक्वल टू b बार डॉट ds बार. तो ये आ गया आपके पास स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. राइट? अगर ऐसा हुआ, इफ दिस एरिया एलिमेंट ds इज अ पार्ट ऑफ अ बिग एरिया, मतलब ये ds खुद एक बहुत बड़े एरिया का छोटा सा पार्ट हो सकता है. It is a very small part of a big area. हो सकता है ना ऐसा? So maybe this is a very small part of a big area. So total flux through this surface S can be obtained by integrating. So total flux can be obtained by integrating over surface S d phi. तो ये आएगा इंटीग्रेशन ओवर S b bar dot ds बार. राइट? नाउ अगर हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, पहले आइडिया समझ लो. क्या प्रॉब्लम होता है? व्हाई आर यू नॉट एबल टू रिकॉल? क्योंकि कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी साउंड. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, मतलब बिना किसी बैटरी के करंट और ईएमएफ इंड्यूस होना. वो कब होता है? जब फ्लक्स चेंज हो. फ्लक्स किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है, एरिया का नहीं होता. एरिया तो एरिया है. तो क्या चेंज होना चाहिए? फ्लक्स. वेरी गुड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा. हमने क्या किया? हमने सिर्फ फ्लक्स निकाला, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ. राइट? तो हमने निकाल लिया फ्लक्स. अभी फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. फ्लक्स चेंज कब होगा? जब बी बार चेंज होगा. तो ds बार तो चेंज नहीं होता ना. ds बार तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, कांस्टेंट है वो. राइट? तो फ्लक्स चेंज तब होगा जब b चेंज होगा. तो दैट इज व्हाई इफ, आपको लिखना पड़ेगा, इफ
the magnetic field is varying with time, मतलब magnetic field is a function of time, then flux will also change with time. Phi of t equal to integration over s d bar of t dot ds bar, राइट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? EMF will be induced, therefore EMF will be induced, which is given by E d phi by dt, which is d dt of, और ये phi of t है because it is a function of time, and you know what is phi of t. So you already know what is phi of t. So phi of t is what? Integration over s d bar of t dot ds bar. हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए, राइट? वैसे इट इज हाईली अनलाइकली दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस वन. क्या बोलेंगे? राइट नोट ऑन फ्लक्स ऑफ फील्ड सिर्फ पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो कि ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते हैं. इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फ्लक्स को चेंज होना तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ. गुड. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में ही है मोशनल, मतलब देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मोशन. अब इसमें दो टाइप के मोशन हमको देखते हैं, एक है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल. और ट्रांसलेशनल ईएमएफ, तो ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल ईएमएफ. ट्रांसलेशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इसके डेरिवेशन के हमने दो अप्रोच देखे थे, दो अलग अलग मेथड देखे थे हमने. करना क्या है पहले वो समझ लो. करना यही है कि आपने यहाँ पे सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बता दिया, लेंज लॉ, या फिर इवन दिस वन, थर्ड इज सेकेंड लॉ. आपने सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बताया है. आपने बोला द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. और लेंज लॉ में बोला the EMF induced is such that it opposes the cause producing it, मतलब E equal to minus d phi by dt, but we have not proved it anywhere. तो प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव कैसे करोगे? तो प्रूव ऐसे करोगे. अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले we will take magnetic field. First of all you need to take magnetic field. तो हम लोग एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पता होगा आपको. What do you mean by cross magnetic field? Going inside the plane of board, in this case plane of your screen. So you have a crossed magnetic field. तो आपके पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है. इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इट इज पार्शियली इनसाइड द फील्ड. ये कंप्लीटली इनसाइड नहीं है, ये पार्शियली इनसाइड है. तो यू हैव पार्शियली इनसाइड, राइट? कुछ नाम दे दो, गिव इट सम नेम. आई थिंक P Q R S ऐसा कुछ बोल दो, ठीक है? डजंट मैटर व्हाट इज द नेम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो PS साइड है इसका लेंथ है N, और PQ एज यू कैन सी, PQ जो है ये पूरा का पूरा फील्ड के अंदर नहीं है, तो जितना पार्ट फील्ड के अंदर है उसको मैं बोल दूंगा X. तो जितना पार्ट फील्ड के अंदर है उसको मैं बोलूंगा X, राइट? तो अब ऐसा है, पहले तो एक सिचुएशन समझ लो. यू हैव अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर. यू हैव अ कंडक्टिंग लूप, नॉट करंट कैरिंग लूप, इट इज कंडक्टिंग, जस्ट मेड अप ऑफ सम कंडक्टर. करंट नहीं है इसमें, कहां से आएगा करंट? आपने कुछ कनेक्ट किया नहीं. देन ये जो लूप है इसका जो साइड है PS, उसका लेंथ है L. PQ पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, a part of it is inside magnetic field and that part is nothing but X. So initial flux linked with the coil is L into X. L into X मतलब बेसिकली इतना पोर्शन,
इतना पोर्शन ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी LX। LX ही आएगा ना, पक्का पक्का। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज LX। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज B इंटू एरिया। ये तो एरिया है, B कहाँ है, फिर मल्टीप्लाई करो। तो फ्लक्स linked with the coil is B into initial area, which is L into X, BLX। Good। नहीं तो L into X लिख दिया, बोला हाँ yes, अरे L into X is area meter square, it's not flux। Flux is B into A। What is flux? B into A। Good। तो ये है initial flux linked with the coil। अब ऐसा है, आप इससे घूम फिर के वही बात आती है, हाउ बेटर हैव यू अंडरस्टूड इज, इट इज डिसाइडेड बाय कि आपको कहां पहुंचना है, पहले वो समझो। कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। ये कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज कब होगा, जब आप इस कॉइल को मूव करोगे। तो लेट दिस कॉइल बी मूव्ड आउट विद वेलोसिटी v। तो जब आप इस कॉइल को बाहर की तरफ मूव करोगे तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बताओ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकंड। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय d∅dt। लेकिन फाई क्या था, BLX। हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया क्या, नहीं, कांस्टेंट है। L, आप भले ही कॉइल को बाहर निकालो, L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L तो हमेशा उतना पार्ट अंदर ही है, मतलब L इज आल्सो कांस्टेंट। व्हाट इज चेंजिंग इज X, तो dx/dt। व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी। तो आपको मिल गया d∅dt एस BLV, इक्वेशन नंबर 2। राइट। हमको प्रूव करना था E इक्वल टू माइनस d∅dt या E इक्वल टू प्लस d∅dt, दोनों में से कोई भी एक। हमने अभी तक सिर्फ d∅dt तक आया। राइट। अब आपको ये सोचना है कि E कहां से लाओगे इक्वेशन में। d∅dt हो गया, राइट हैंड साइड का काम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड E कैसे लाएंगे, E कैसे लाएंगे, सिंपल है। यू शुड नो व्हेनेवर you are moving the coil outside, flux linked with the coil changes and hence a current is induced। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हो गया, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। राइट। अब ऐसा है, QR को छोड़ के बाकी जो साइड्स है RS, SP एंड PQ, दे आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। So when you have current carrying conductors inside external magnetic field, they experience force, which is given by Bill sin theta। Very good। तो यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ F1, इसको बोलता हूँ F2, इसको बोलता हूँ F। बट F1 और F2 दे विल कैंसल आउट क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। राइट। कैसे इक्वल अपोजिट पता है हमको, क्या पता है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू B I, कितना पार्ट था, XX। राइट। सिर्फ एक RS साइड के लिए करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज PQ के लिए इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपको पता है फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, यू नो, स्क्रू रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कौन था, राइट हैंड स्क्रू रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो डजंट मैटर, यू शुड नो लॉजिकली स्पीकिंग, एक अगर लेफ्ट टू राइट करंट है, राइट टू लेफ्ट है, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट, मैग्नीट्यूड होगा सेम, तो कैंसिल आउट होगा। तो F1 एंड F2 विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो कौन कैंसिल नहीं हुआ, F। अब F कैंसिल नहीं हुआ, ये और ये गया। अब इमेजिन कि मुझे अगर इस कॉइल को dx डिस्प्लेसमेंट करना है और इसको बाहर निकालना है। इफ आई वांट टू डिस्प्लेस
the coil outwards by a small displacement dx. Work has to be done क्योंकि इस पे फोर्स है ऑलरेडी अंदर की तरफ, आपको बाहर निकालना है तो वर्क हैज टू बी डन. So what is the small amount of work done? It is f dx. But wait a minute, displacement कहाँ करना था? बाहर. Force कहाँ था? अंदर. Minus. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. Good. Clear यहाँ तक? अब what is force? BIL है ना? Force is BIL sin theta. थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब जब आप एल की बात कर रहे हो, मतलब कौन सी साइड की बात कर रहे हो? पीएस की. पीएस के लिए लेंथ एलिमेंट कैसा है? ऊपर की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है. तो एंगल कितना हो गया? 90. तो साइन 90 कितना है? 1. तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस बी आई एल बी एक्स. यह आ गया आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द कॉइल आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. वर्क डन आ गया. हमें क्या चाहिए था? ई. तो अब ये सोचो कि वर्क डन और इंड्यूस्ड ईएमएफ में कौन सा फॉर्मूला रिलेट होगा? ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर. डू यू नो इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर. व्हाट इज पावर? आई आर स्क्वायर गुड, वी स्क्वायर बाय आर गुड, और एक हो वी अपॉन नहीं, वी इनटू आई. तो यू नो दैट पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. तो आप ऐसा बोलोगे, वी नो दैट पावर P is E into I, but we know that power P is work done per unit time. फिर आप इससे बोलोगे work done per unit time is EI. Therefore, you will say work done equal to EI dt. Equation number 3 ये था. Equation number 4 है. फिर आप बोलोगे from equation number 3 and 4 left hand sides are same, so right hand side be same. So you will write down from equation number 3 and 4, from 3 and 4, EI dt equal to minus BLX. BIL dx. BIL dx. Good. I or I cancel. So you will have E equal to minus BL dx by dt. लेकिन dx by dt क्या है? V है. तो E equal to minus BLV. Equation number 5. Equation number 5 और equation number 2. d phi by dt is BLV, but BLV is minus E. So from equation number second and fifth, what you have is E equal to minus d phi by dt. Hence proved. हो गया. गुड. सिंपल था. तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया. एक कॉइल लिया एक्सटर्नल फील्ड में, कॉइल के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कॉइल है बस, दैट्स इट, कंडक्टिंग कॉइल, राइट. देन इनिशियल फ्लक्स, ऐसा ब्रेन मैपिंग करना पड़ता है. पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लो BLX. फिर अगर मैं कॉइल को बाहर मूव कर रहा हूँ तो फ्लक्स चेंज होगा. तो हाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? d phi by dt. डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. डेरिवेटिव लोगे, B और L तो कांस्टेंट था. X इज चेंजिंग क्योंकि X पार्ट was inside field. Now जब आप कॉइल को बाहर निकालोगे तो x is changing, तो dx by dt is v. तो you have d phi by dt as BLV, correct. then जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ. मतलब तीन साइड ऐसे है जो करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें दो साइड पे फोर्स है अप एंड डाउन, इक्वल बट अपोजिट, कैंसल्ड आउट. एक साइड है जिसका फोर्स बैलेंस नहीं हो पाया, इसका मतलब मुझे कॉइल को बाहर निकालना है तो वो फोर्स अपोज करेगा, तो वर्क होगा, वर्क करना पड़ेगा. वर्क करोगे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो यू हैव अ नेगेटिव साइन. बट फोर्स इज BIL, तो माइनस BIL dx, राइट. बट देन E चाहिए ना, E, ये दिमाग में रखो. E चाहिए, कहां से आएगा? तो पावर, E इंटू आई. बट पावर क्या है? dW by dt. तो dW by dt इज EI, तो dW इक्वल टू EI dt. बट dW का इक्वेशन हमने पहले भी फाइंड करके रखा है, राइट. तो दोनों
इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम आएगा, तो ई मिल गया आपको माइनस बी एल बी। लेकिन बी एल बी तो ऑलरेडी पता है क्या है, डी फाइव बाई डी टी, तो ई क्या आ गया माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये पहला अप्रोच था। और अल्टरनेट अप्रोच भी है, मेथड 2। मेथड 2 में देयर इज नो बिग चेंज रियली, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। द चेंज इज दिस, अभी भी आपके पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अगेन यू आर टेकिंग मैग्नेटिक फील्ड which is going inside the plane of board. So you have crossed magnetic field, but this time what you have is, याद होगा आपको अप्रोच, पूरा का पूरा लूप is inside the external magnetic field. कुछ नाम दिए थे मुझे याद नहीं, I call it something A, B, C and D। इसमें से 3 साइड जो थे वो फिक्स थे और एक साइड जो था वो मूविंग था। BC साइड वॉज मूविंग, AB, AD and CD आर फिक्स्ड। और वापस से आपने यही बोला था कि ये लेंथ है L और ये पार्ट है X। फिर वापस से आपने स्टार्टिंग वहीं से किया था। वी नो दैट इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल BL X, राइट। सिर्फ इतना है, यहां पे चारों साइड फिक्स थे, आप कॉइल के एक साइड को बाहर की तरफ पुल कर रहे हो, यहाँ पे 3 साइड फिक्स है, एक मूविंग है, तो इनिशियल फ्लक्स इज B इंटू L इंटू X। अब क्या करोगे, अब you will move this out with velocity v। सेम स्टोरी, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अप्रोच में डिफरेंस है। अब अप्रोच ऐसा है कि द मोमेंट यू पुल दिस आउट, तो आपने जैसे ही इसको बाहर की तरफ विथ v स्पीड, वेलोसिटी v के साथ जैसे ही बाहर आपने पुल किया, तो ये लेंथ तो चेंज हुआ नहीं, चेंज क्या हुआ x, मतलब अगेन द फ्लक्स इज चेंज and the rate of change of flux is again d phi by dt, which is d dt of BLX, मतलब BL dx by dt, मतलब again rate of change of flux is nothing but BLV, equation number 2। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, you have same thing, but now हमने पिछली बार बोला कि whenever there is change of flux linked with the coil, current is induced। यहाँ पे भी वही बोलेंगे, whenever there is change linked with the coil, whenever there is change in the flux linked with the coil, there will be a current which is induced। current मतलब क्या, moving charges। now this time सिर्फ आप इतना बोलोगे कि since a current is induced in the coil, hence the charges start moving, consider one such charge Q which is at C। करंट मिलने का क्या मतलब होता है, चार्जेस का मोशन होना। करंट है मतलब चार्जेस मूविंग है, तो ये चार्ज भी मूव होगा, कहां जाएगा, C से B की तरफ, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम C टू B, तो इट बिकम्स अ चार्ज मूविंग इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड हमने लास्ट चैप्टर में देखा, whenever you have a charge which is moving inside external magnetic field, a force acts on it which is QVB sin थीटा। वेक्टर फॉर्म चाहिए तो Q V बार क्रॉस V बार। मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूं, मूविंग चार्ज, करंट है मतलब चार्जेस मूविंग है मतलब वेलोसिटी है और फील्ड है तो फोर्स है, राइट। एंड अगेन थीटा 90, क्यों, क्योंकि चार्ज कैसे मूव हो रहा है, अप टॉप टू बॉटम, है ना। फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब एंगल इज 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1, तो व्हाट यू हैव इज sin 91, तो मतलब you will have QVP since theta is 90। then what, वर्क डन होगा ना, क्यों, अपने आप जाएगा कि वो C से B पे, नो, तो वर्क इज डन in moving the charge from C to B, and that work done, if you know
वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है सी से बी, मतलब कितना है एल है, तो एफ एल बट एफ कितना है क्यू वी बी, क्यू वी बी एल, ये आ गया वर्क डन। देन वापस से वही है, कहां तक जाना है आपको, ई तक जाना है, कहां पे ई कैसे लाओगे, हाउ विल यू ब्रिंग ई हियर, this time you cannot do the same, you cannot write down power as E into I because we are not talking in terms of I, हम करंट के बाद टर्म्स में तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद है वर्क डन इज चार्ज पोटेंशियल, समथिंग आई हर्ड अबाउट पोटेंशियल, भूल गए वर्क डन इज क्यूवी, राइट, तो वर्क डन इज क्यूवी, वी की जगह पे क्या बोलेंगे हम ई, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, हाँ, तो वर्क डन इज व्हाट क्यू इनटू ई, तो क्यू वी बी एल, क्यू और क्यू कैंसल, तो ई क्या आ गया बी एल बी, इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 E is BLV but BLV is d phi by dt, so from equation number 2 and 3 you have E equal to d phi by dt, हो गया, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of flux linked with the coil। then अभी तो हमारा पहला ही हुआ ट्रांसलेशनल ईएमएफ, देन यू हैव रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वापस से यू हैव अ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, this time the motion of the conductor is not basically linear, it is rotational। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक रॉड ले रहा हूं, ये एक बार है, ये बार मैग्नेट नहीं है, रिमेंबर दिस इज अ रॉड basically made up of a conducting material, this is not a magnet and this is something like that, ऐसा है, तो इट इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है रॉड है, बार है, कंडक्टिंग मटेरियल का बार है, ये बार मैग्नेट नहीं है, गुड, इसको पिवोट किया मतलब फिक्स किया बेसिकली पी पॉइंट पे, देन वी इमेजिन द बार टू बी मेड अप ऑफ, हम ऐसे इमेजिन करते हैं that this bar is made up of, ये जो बार है it is made up of small length elements, now imagine this bar to be made up of small length elements, just a minute, तो ये जो बार है it is imagined to be made up of small length elements and sorry for this getting locked over here, fine, और उसमें से एक हमने एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस है dr, thickness is dr and this element dr is at a distance of r from the pivot, तो ये पिवोट से r डिस्टेंस पे है, राइट, बोल सकते हैं ना 10 मीटर मतलब 10 1 मीटर, इफ आई टेक अ रॉड ऑफ 10 मीटर मतलब आई हैव 1 मीटर के सेक्शंस टोटल 10, तो वैसे ही है, एक आपके पास बार है which is assumed to be made up of large number of small length elements, consider one such element of thickness dr at a distance r from the pivot, right, और total length of the rod is l, small l, इसका जो टोटल लेंथ हो गया यहां से यहां तक का ये l है, गुड, now what happens is when the rod rotates,
इन एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसा रिलीज कर दिया। रिलीज करोगे तो क्या होगा, रोटेट होगा। यू हैव अ रॉड, when released it rotates, when it rotates flux linked with the rod and hence the flux linked with the element will change, and whenever there is change of flux there is induced EMF, and अभी अभी हमने लिखा induced EMF is nothing but लिखा ना BLV, right? तो induced EMF in the small element is DE, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें देख रहे हो, स्मॉल एलिमेंट में देख रहे हो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल आल्सो बी स्मॉल, विल बी बी एल, एल इज dr, क्योंकि लेंथ कितना एलिमेंट का dr, और b, राइट। बट अगर आपको याद होगा जब आप सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन की बात करते हो तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज रोटेशनल वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हियर, तो आपको मिल जाएगा d इक्वल टू b d r, v is r omega, therefore de is equal to b r omega dr, राइट। तो अब ऐसा है, इसके बाद ये ईएमएफ इंड्यूस किस में हुआ, स्मॉल एलिमेंट में, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा रॉड इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मतलब हमको टोटल अगर निकालना होगा, टोटल क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड ई विल बी इंटीग्रेशन ओवर डीई, कहां से, जीरो से कहां तक, पूरे लेंथ तक, क्योंकि यहाँ ये 0 पॉइंट है और यहां तक आता है तो लेंथ हो जाता है एल, तो 0 टू एल, राइट, तो 0 टू एल, तो यह आ जाएगा 0 टू एल बी आर ओमेगा डी आर, इसमें जो जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, बी, क्या कांस्टेंट है, ओमेगा, आर डी आर 0 टू एल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर, आर स्क्वायर बाय 2 विद इन लिमिट्स 0 टू एल, तो हो गया E इक्वल टू बी ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन कौन सा ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, करेक्ट, यहां तक। अब अगला टॉपिक हमने देखा था इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ओके, तो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर के लिए यू अगेन नीड दिस कॉन्सेप्ट, और इसका तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भी वही है, फ्यू स्टेप्स आर द सेम। तो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो अब इस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, ये पूरा का पूरा कॉइल किस मटेरियल का था, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस, तो पूरे के पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, उसको बोल देंगे आर। अब ऐसा है, मैं पूरे कॉइल को दिखाता हूं समथिंग लाइक दिस, और यू ऑलरेडी नो, व्हाट डू यू नो इज कि जैसे ही आपने कॉइल को मूव किया, कहां पे मूव किया, आउटसाइड मूव किया, तो व्हेन यू मूव दिस कॉइल आउटसाइड, आउटसाइड यू नो व्हाट हैपेंस, पहले तो इनिशियल फ्लक्स पता है आपको, फिर आपको अभी ये पता है आप आउटसाइड मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो फोर्स एक्ट होंगे, उसमें दो फोर्सेस कैंसिल होंगे, एक फोर्स कैंसिल नहीं होगा, फिर वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इज नोन एज एफ डी एक्स, एफ इज बी I L dx with a negative sign, but work done is E into, मतलब work done अभी भी देखा था ना, E into I, power was E into I, but power is dW by dt, तो dW is EI dt, वो सब कर करा के लास्ट स्टेप, ये हमको यहाँ मेंशन नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे बेसिक बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है, पार्शियली इनसाइड है, जो PQ का X पार्ट इनसाइड है, फिर हमने इनिशियल फ्लक्स पता है इतना है, फिर कॉइल को बाहर मूव किया वेलोसिटी v, उसके वजह से ये सब हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, डायरेक्टली जंप करना, सेंस
we are moving this coil outside with velocity v, hence flux linked with the coil changes and hence EMF is induced. You don't have to derive anything. EMF is induced. बात खत्म. EMF is induced, which is given by d phi by dt. That's all you want to do. अब EMF induce हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस, और ये पता है इसका इक्वेशन VLV, राइट. करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और ये रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का, राइट. EMF इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस कितना हुआ वो निकालना है तो ओहम्स लॉ यूज करेंगे. तो I इक्वल टू E by R, E is BLV by R. इक्वेशन नंबर 1, 2 जो भी बोलना हो. I don't care for the numbers here, right. यहां तक आ गए. अब इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, मतलब इसके बाद अब क्या किया था आपको याद होना चाहिए. इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी मतलब वर्क. तो यू टॉक इन टर्म्स ऑफ वर्क. व्हाट इज वर्क? What is work? Force into displacement. Force into displacement. Very good. What is power? Work upon time. Very good. तो आप बोलोगे, we know that work is force into displacement, and then we also know that power is work upon time. But wait a minute, work is what? Therefore, power is what? Force into displacement upon time. But displacement upon time is what? Velocity. So power is what? Force into velocity. मतलब P equal to FV. अब कोई नंबर दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर. देन इसके बाद क्या करोगे? P डी आई बाई डी टी कब से हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज नॉट पावर. अगर आप dw बाई dt बोलते तो मैं मान लेता, बट इट इज नॉट di बाई dt. E into I, कहां तक पहुंचना था आपको? That's what I keep on telling you. You always need to know कहां पहुंचना है. घर से निकलते हो क्लास में आने के लिए पता होता है ना कहां जाना है, तो रास्ता अपने आप दिमाग डिसाइड करता है. और डू यू थिंक ओ अभी यहाँ पे आ गया, आप कहाँ जाओ? कहते हैं कैसा? दैट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव टू नो कि कहाँ पहुंचना है. इसलिए मैं हमेशा उल्टा अप्रोच बताता हूँ. मैं टॉप टू बॉटम की जगह पे बॉटम टू टॉप बताता हूँ. ऑलवेज नो वेयर यू वांट टू रीच. तो अगर आप इस टॉपिक का आखिरी स्टेप देखोगे ना, तो यू आर टॉकिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ हीट जनरेटेड. इसलिए नाम क्या है? एनर्जी ट्रांसफर. देखो क्या है आइडिया. ये था हमने इस कॉइल को बाहर मूव किया, वर्क डन हो गया. वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कहां जाएगा? इट विल जनरेट हीट, राइट. तो हीट जनरेटेड वहां तक पहुंचना है. तो क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे? एफ वी. यू हैव सम इक्वेशंस हियर. थिंक 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 थिंक. कुछ तो हमने करके रखा है. फोर्स फोर्स फोर्स. व्हाट इज फोर्स? सब दिख रहा है यहाँ पे. करंट था, कितना इंड्यूस करंट था? I, राइट. तो व्हाट इज द फोर्स? F. व्हाट इज फोर्स? BIL. क्योंकि सिर्फ यही है जो फोर्स कैंसल नहीं हुआ, तो वही तो फोर्स होगा ना यहाँ पे. हाँ, तो ये क्या लिखोगे आप? BIL. और भी स्टेप भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्स दिखाना. हाँ अभी मैं अटक गया, फिर क्या करो? V तो कुछ नहीं कर सकते ना. क्या करोगे? फोर्स का सोचोगे. कौन सा फोर्स? जो बचा है वो फोर्स. वो फोर्स कितना है? BIL. ओ लेकिन I तो फाइंड करके रखा हमने. BLV by R. तो दिस इज B एंड I इज BLV by R. और ये L एज इट इज और ये एज इट इज. तो ये आ गया आपके पास B²
L square V square by R. This is power. This is power. अब आगे हाँ E square कहाँ पे ये होता है? वेट अ मिनट, BILV, B और L बराबर लिखा है, V बराबर लिखा है, I की जगह पे हमने लिखा BLV by R. That is fine. हाँ ओके, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी. ओके फाइन, यू आर, दिस इज द लास्ट स्टेप. क्या करना था इसके बाद? मैंने अभी बताया हीट जनरेटेड. हैव यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आई स्क्वायर आर लॉस? व्हाट इज आई स्क्वायर आर लॉस? What is I square R loss? Whenever current passes through a conducting wire, because of the resistance, there is loss of energy. That is called as I square R loss. Correct? इसको I square R की फॉर्म में लाओ. This is power. Power. आगे क्या करेंगे? हो गया खत्म. This is the last step. I'm just asking you, write it in terms of weight. हो गया, ठीक है. Wait. This is the power. किसका पावर? किसका पावर है ये? Power of what? This is power in the circuit. Now we know that heat generated लिखना है तो power is I square. I square. What is I? मतलब B square L square V square by R square और R cancel and cancel. तो क्या आ गया? B square L square V square by ये और ये सेम है क्या? यस. ये आपको बोलना यहाँ पे ऐसा था. Hence we see that power due to work. मैं पहले बता रहा हूँ, this is power due to work. वर्क हुआ तब, वर्क क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी था. क्यों वेलोसिटी था? आपने इसको बाहर पुल किया. जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब इसको आपको वर्क करके ही बाहर निकालना पड़ेगा. तो जैसे ही ये इक्वेशन बना आपके पास B square L square V square by R, तो दिस इज पावर ड्यू टू वर्क डन in moving the coil outside. ये खत्म यहां तक. फिर आप बोलोगे but wait a minute, we know that power due to current which generates heat in the circuit is given by I square R. but I तो पता है ना, right? तो सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर बोलोगे oh wait a minute, power due to heat generated and power due to work is same. Hence, the work done in moving the coil outside appears as heat in the circuit. और इसके लिए टॉपिक का नाम है एनर्जी ट्रांसफर. ट्रांसफर हुआ ना, वर्क एनर्जी था, उसी का ट्रांसफर किसमें हुआ? हीट में हुआ. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का.